Bismillahirrahmanirrahim. Glow E-School System. Respected viewers and glowing students, Assalamu alaikum. Welcome to Glow E-School System online classes. Hope you all are doing well. I am your class teacher Nushaba Salim and I will be teaching you English grammar. You can watch this lecture on our YouTube channel as well. Please subscribe our channel to get latest lectures and academic updates. Please use Glow mobile app for downloading of notes, home task and periodic test. This lecture will be sent to you on your class WhatsApp group as well. Thank you. Outcomes of the lecture. So the outcomes of the lectures are homework, test or exercise. By the end of this lecture, I am going to give you some home tasks which will include some exercise, questions or test. Please complete this home task on your subject copy and submit it back to us for checking. Please note these home tasks have marks which will be awarded in first exams. So try to complete all given tasks in time. Hope you will enjoy this lecture and it will add to your academic growth. Introduction of the lecture. The title of our today's lesson is Quantifiers used with the countable and uncountable nouns. In this chapter, we will cover quantifiers, countable nouns and uncountable nouns. Let's start now. Starting from our chapter number 1, quantifiers used with the countable and uncountable nouns. So the first question is what is quantifiers? क्वांटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन से हमेशा पहले आते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को बताने के लिए हम क्वांटिफायर्स यूज़ करते हैं. सो द एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिफायर्स आर सम, मैनी, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सेवरल. स्टूडेंट्स जो मैं लाइन मार्क कर रही हूँ ये डेफिनेशन है क्वांटिफायर्स की. So now the next is what is countable noun? Countable nouns are nouns that can be counted. Countable nouns वो nouns होते हैं जिनको हम count कर सकते हों. For example, tables, ants, birds. So these are the examples of countable noun. Now let's move to the page number 2. What is singular countable nouns? Singular countable nouns cannot be used alone. We have to put a or an before the noun. Students, singular countable nouns जो हैं हमेशा अकेले में यूज़ नहीं होते. हमने उनके साथ a और an यूज़ करना होता है before noun. We put a if the noun begins with a consonant and an if it begins with a vowel sound. हमने a जो है कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करना है. कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? वॉवल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ हमने ए यूज़ करना है और एन जो है हमने वॉवल साउंड के साथ यूज़ करना है. नाउ फॉर एग्जांपल, अ मोबाइल फ़ोन, एन एरोप्लेन. अब स्टूडेंट्स ये जितने भी जो है आर्टिकल ए एंड एन, अब देखें सिंगुलर के साथ हमने ए यूज़ किया हुआ है और जो है अ फ्यू कॉइन्स हमने ए जो है मोबाइल फ़ोन के साथ लगाया हुआ है क्योंकि जो एम है मोबाइल फ़ोन का जो स्टार्टिंग एम वर्ड है ये कॉन्सोनेंट है और एन एरोप्लेन एन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ए जो है एरोप्लेन का फर्स्ट वर्ड ए ये वाउल है. सो हमने इसलिए यहाँ पे एन लगाया हुआ है. नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है अनकाउंटेबल नाउन. Uncountable nouns are nouns that cannot be counted. Uncountable nouns उन्हें कहते हैं जो कि काउंट हम नहीं कर सकते. जिनको हम नहीं काउंट कर सकते उनको uncountable noun कहेंगे. For example,
फॉर एग्जाम्पल सूप, शुगर, डस्ट। अब इन वर्ड्स को आप फोकस किया है, शुगर, सूप, डस्ट, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, दीज कैन नॉट बी काउंटेड। अब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कुछ क्वांटिफायर्स हमने यूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल सम, मच, अ लिटिल, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ। फर्स्ट जो है एग्जाम्पल है, वुड यू लाइक सम जूस। यहाँ पे जूस के साथ सम लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज मच डस्ट ऑन द बुक्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमने मच क्वांटिफायर यूज़ किया है। Now the next point of the uncountable noun is uncountable nouns can also be used alone. Uncountable nouns भी हम जो है अकेले में यूज़ कर सकते हैं। For example, water is very precious. स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हमने इसके साथ क्वांटिफायर नहीं लगाया। अब ज़रूरी नहीं है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम कोई भी क्वांटिफायर्स लगाएं। अब वाटर के साथ हम सम नहीं लगा सकते, मैनी नहीं लगा सकते, अ लॉट ऑफ नहीं लगा सकते। वाटर जो है अकेला यूज़ हो सकता है इसके साथ, मतलब कोई भी हमने क्वांटिफायर लगाना ज़रूरी नहीं है। Now turning to the page number 3, we can also use words like a glass of, a ball of, a bucket of, and so on with the uncountable nouns. स्टूडेंट्स, हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ ज़रूरी नहीं कि क्वांटिफायर्स यूज़ करें, हम आ भी यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। जैसे फर्स्ट वन है अ क्यूब ऑफ आइस, अ टैंक ऑफ वाटर। Now turning to the page number 4, here are more examples of countables and uncountable nouns. Write down some of your own. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, एक साइड पे काउंटेबल नाउन है और दूसरे साइड पे अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल दी गई है। आप लोगों ने जो नीचे खाली जगह है, ब्लैंक्स हैं, इसमें आपने इनमें और एग्जांपल्स ऐड करनी है। Now turning to the page number 5, these quantifiers are used with the countable nouns, include some other you know. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको जो है क्वांटिफायर्स दिए गए हुए हैं विद द काउंटेबल नाउन्स, और कुछ मिसिंग है वो आप लोगों ने इसमें पुट करने हैं। और जो नीचे वाला टेबल है, दीज क्वांटिफायर्स आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, इंक्लूड सम अदर्स यू नो। अब इस टेबल में आप लोगों को क्वांटिफायर्स दिए गए हैं विद द अनकाउंटेबल नाउन्स, और आप लोगों ने जो मिसिंग है इसमें ऐड करने हैं क्वांटिफायर्स। Now move to the page number 6. Here is the exercise number 1. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड बैंक दिया गया है और नीचे कॉलम्स हैं काउंटेबल नाउन के और नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन्स। आप लोगों ने इस वर्ड बैंक से जो काउंटेबल नाउन्स हैं वो आपने काउंटेबल नाउन्स में पुट करने हैं, एंड जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वर्ड बैंक में वो आपने अनकाउंटेबल नाउन्स में पुट करने हैं। नाउ टर्निंग टू द पेज नंबर 7, स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 2 भी सॉल्व करनी है। आपको वर्ड बैंक दिए गए हैं एंड यू हैव टू जो है मैच द वर्ड बैंक्स इन द फॉलोइंग गिवन ब्लैंक्स। Now turning to the page number 9, here's exercise number 3. Underline the suitable quantifiers for the countable and uncountable noun in the following sentences. The first example is there several any butter in the fridge? स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं क्वांटिफायर्स के, सेवरल और एनी। आप लोगों ने देखना है कि बटर के साथ कौन सा क्वांटिफायर यूज़ होगा, तो आपने पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इज देयर एनी बटर इन द फ्रिज? सो द एनी ऑप्शन इज करेक्ट। Now students, here's assignment pages and the essays are here. आप लोगों ने ये ऐसे है my country, you have to learn and write it in your copies. As similarly, these letters are also here and you have to write and learn these letters too. The letter number 1 is to friend about your trip to hill station.
Number 2 is to your brother about the importance of science subject. Now your home task is to solve page number 4 and 5 of your grammar book on your books and exercises 1, 2 and 3 on your books. Learn and write essay number 1, My Country, and letter number 1 to your friend on your note copies, English free copies.